Hello everyone, how are you? Again I have come with new topics of matrices. Last day in the last lecture we have discussed about the matrix, the basic approach about matrices, how to solve and the basics of matrices. कि basics of matrices क्या होता है? Last day we have discussed about that. Okay. Now today we will discuss about the types of matrices कि कितने types of matrices possible है. Okay, so first one is the raw matrix. First one is the raw matrix. Okay, what is raw matrix? As the name suggests, okay, through the name you can think when all the elements of a matrix are arranged in a row. Okay, just see 1 2 3 4 ये चार elements हैं and when you arrange them in one row means a matrix which is composed in one row is called as raw matrix. Following, अब ये चीज लिमिटेड नहीं है कि आप कितना एलिमेंट्स प्लेस करते हो. ओके, यू कैन आइदर प्लेस 4 एलिमेंट्स, यू कैन आइदर प्लेस 2 एलिमेंट्स ऑल्सो, और you can place 50 elements, you can place 60 elements, but in one row. Okay, just see 7 8 9 10 12 15 and 16. This is what the raw matrix means. जब आप एलिमेंट्स को एक रॉ में अरेंज करते हो, the matrix is called as raw matrix. Now we move to the next. Second one is column matrix. Okay, what is column matrix? Just reverse of raw matrix. When elements are arranged in one column, follow करना, when elements are arranged in one column, the matrix is called as the column matrix. और फिर वही बात, आप दो एलिमेंट्स को भी एक कॉलम में अरेंज कर सकते हो. यू कैन आइदर अरेंज 2 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, और इट कैन बी 60 और 70 एलिमेंट्स, बट इन वन कॉलम. जस्ट सी 7 8 9 10 11 डॉट 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 50. इतना बड़ा एलिमेंट को, इतना ज्यादा एलिमेंट्स को, लेकिन अगर आप एक ही कॉलम में अरेंज करते हो, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. नाउ वी प्रोसीड टू द थर्ड वन. द थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन इज null matrix. Null matrix, or this is also called as the zero matrix. Okay, all those matrices whose elements are zero means वो सारा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो कहलाते हैं नल मैट्रिक्स. बहुत ही सिंपल है. जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो कहलाता है नल मैट्रिक्स, और यू कैन से जीरो मैट्रिक्स. फॉलोड नेक्स्ट वन, फोर्थ वन. ओके, फोर्थ वन इज आवर diagonal matrix. Diagonal elements of a matrix. Diagonal elements of a matrix. ये diagonal elements of a matrix क्या होते हैं? I think so कि last day we have also discussed about the diagonal elements of a matrix. What it is? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी डायगोनल आए या डायगोनल एलिमेंट्स आ जाए, यू विल हैव टू कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, व्हाट इट इज, जस्ट सी स्क्वायर मैट्रिक्स बताए हुए थे
कि जिसमें सेम नंबर ऑफ रॉ और सेम नंबर ऑफ कॉलम होता है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, फॉर एग्जांपल 2 3 5 6 7 8 9 10 एंड देन 12. फॉलो करना आप. ओके, डायगोनल इज व्हाट? दिस आर द डायगोनल एलिमेंट्स. एक ही डायगोनल को आप चूज करते हो, 2 7 12, और in square you what you know is that there are two diagonals, first and second. But in case of matrices का जब आप केस पढ़ते हो, then only one diagonal is chosen, that is from here to here. Okay, so diagonal elements of a matrix कौन हो जाएंगे? 2 7 and 12. Followed? Is it clear? Now diagonal elements. अब ये diagonal elements 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर 2x2 मैट्रिक्स. जस्ट सी 1 2 3 4. 1 and 4 are diagonal elements. Followed? 1 and 4, these are diagonal elements. Okay, now move to the next one. Now we move to the next one, that is the square matrix, जो अभी बता रहे थे आपको. Square matrix, a very simple one. Okay, square means you know a rectangle whose length and breadth are equal. That particular geometrical figure is known as square. And here also ये application है. ओके, स्क्वायर नेम का एप्लीकेशन है ऑन मैट्रिसेस, that is 2 5 6 3. These are the two numbers which are arranged in square matrix, और yes, square matrix फॉर्म में इसको अरेंज किए. So why it will be called as square matrix? Because इधर से भी two elements और इस तरफ से भी 2 elements, आप ऐसे भी समझ सकते हो. और you can understand that it consists of 2 rows, okay, and also 2 column. Means वैसे मैट्रिसेस जिसमें सेम नंबर ऑफ रॉज और सेम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, they are called as square matrix. It can be of order 2x2, it can also be order 3x3, can also be of the order 4x4. Just see another example. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is the square matrix of order. This is the square matrix of order 3x3. Okay, order 3x3. It consists of 3 rows and 3 columns. 3 रॉ और 3 कॉलम ये अपने आप में कंसिस्ट करता है. द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ द नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ वन. ओके, द सिक्स्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. अभी डायगोनल एलिमेंट्स पढ़े हुए थे, एंड नाउ अभी डायगोनल मैट्रिक्स. What is diagonal matrix? ये diagonal matrix क्या है ना? अब फॉलो करना, एक 2x2 का मैट्रिक्स लो आप. ओके, डायगोनल मीन्स व्हाट? व्हेन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द डायगोनल. ये तो बात पता है ना? मान लो 2 3 डायगोनल्स पे पहले एलिमेंट्स को आप प्रेजेंट करा दो. एंड द मोस्ट क्या कहते हो आप कि इसके बारे में स्पेशल केस क्या एग्जिस्ट करता है, इज दैट कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं. फॉलो कर रहे हो? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल्स पे प्रेजेंट होते हैं, बाकी के एलिमेंट्स ये 0 होते हैं. दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2x2. ये तो 2x2 ऑर्डर का है. यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर 3x3. जस्ट सी ऑर्डर 3x3 का भी आप एग्जांपल ले लो. सबसे पहले क्या करना होता है कि आप डायगोनल्स पे ही एलिमेंट को प्लेस कर दो. ओके, 1 2 3.
बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ओके, जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, वो सारा एलिमेंट जीरो होगा, ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ 0 0 0 0 and 0 0, this type of matrix when elements are present at the diagonal only, जब डायगोनल पे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट वन स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix, what it is? Okay, any square matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, फॉलो करना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, जीरो हैं, और डायगोनल पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो बराबर है। ओके, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो बराबर है, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स। अगेन यू कैन रिपीट कि इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है जहां की डायगोनल पे जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दे आर इक्वल, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज यूजुअल ये तो जीरो होता है। फॉलोड again scalar matrix of order 3 by 3, you can take 2 2 2, okay, then 0 0 0 0 0 0. Following, it is a matrix of order 3 by 3. Follow करना, it is a matrix of order 3 by 3 where diagonal पे elements 2 2 2 present हैं, बाकी नॉन डायगोनल पे कितने हैं, जीरो प्रेजेंट हैं। दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, बाकी डायगोनल पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दे विल बी 1, दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन असाइन्ड एज द यूनिट मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। आप दूसरे वे में क्या कह सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ये एक स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, इट इज 1। फॉलोड, ये इट इज द ऑर्डर ऑफ 2 by 2। यू कैन ऑल्सो टेक द 3 by 3 ऑर्डर एज 1 1 1 0 0 0 0 0 0। फॉलो करो आप, ये 1 1 1 डायगोनल पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, ये सिर्फ 1 और यूनिटी है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन असाइन्ड एज द यूनिट मैट्रिक्स, यू कैन सी। ओके, नाउ वी मूव नेक्स्ट वन वो क्या कहता है, नेक्स्ट में आपका 9th नंबर। ओके, कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस, व्हाट इट इज, क्लू कैसे आप समझोगे कि व्हाट आर कंपैरेबल मैट्रिसेस, कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, है ना। तो फॉलो करना, बस एक क्लू है कंपैरेबल मैट्रिसेस के लिए, वो क्या है कि व्हेन ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स आर सेम। ओके, जब कोई 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, द मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपैरेबल मैट्रिसेस। एग्जांपल से आप समझोगे 2 3 4 6 8 9
it is a matrix of order 2 by 3. Why? Because it consists 2 rows and 3 columns. Following? Okay. Next one, 1, 0, 9, 7, 8, 10. It is another matrix of order 2 by 3. Followed? It again consists of 2 rows and 3 columns. Elements doesn't matter. Elements matter नहीं करता है. Just what matters is the order. What matters is the order. When order of two matrices are equal, or you can say that when two matrices have same number of rows and same number of columns. Follow करना, इसमें भी 2 रो है और इसमें भी 2 रो है और इसमें भी 3 कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स में भी 3 कॉलम है. तो जब इस टाइप का केस आपके सामने आता है, द मैट्रिसेस आर said to be comparable matrices. Okay, just follow क्या करना, order पे. Now we move to the next one. You can see, okay, or for comparable matrices you can write also कि when order of two matrices are same, then the matrices are said to be comparable. Okay, next one is our equal matrices. Equal matrices, what it is? Okay, it is a modified form of you can say comparable matrices. Comparable matrices का थोड़ा सा advanced form, that is equal matrices. ये क्या कहता है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन अगर आप समझोगे तो 2 बात, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए. दिस इज व्हाट अ मैट्रिक्स 2, 5, 6, 9. फॉलो करना. एंड अनदर मैट्रिक्स ऑल्सो 2, 5, 6, 9. बस दिस इज व्हाट कि अगर एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, this is of the order 2 by 2 and this is of the order again 2 by 2. Therefore these matrices or these two matrices are said to be equal matrices. Okay, दो चीज बराबर होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, then matrices are said to be equal matrices. आप कहोगे एप्लीकेशन कहां पे, जब दो एक ही तरह का मैट्रिक्स को लिख करके क्या फायदा. ओके, जस्ट सी द एप्लीकेशन. 2, 5, 9, 8 फॉलो करना इज इक्वल टू x, 5, 9 and y. It is used in solving linear equations. This type of matrices are used in solving linear equations. Okay, so just say 2, 5, 9, 8 is equal to x, 5, 9, 8. How will you identify that these two matrices are equal matrices? आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि ये matrices equal matrices हैं? और you will be फर्स्ट में आपको कह दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि these are equal matrices. Then find the value of x and y. ओके, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं और ऑर्डर भी बराबर होता है. ओके, जस्ट सी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 फॉलो करना. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 इज इक्वल टू 5. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 9 इज इक्वल टू 9. एंड नाउ अगेन ऑर्डर इज 2 by 2 and its order is also 2 by 2. Then you can easily find the value of x and y. यहाँ पे x का वैल्यू आप 2 लिख दोगे आराम से, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 8. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस. इक्वल मैट्रिसेस का ये एप्लीकेशन फॉलोड. तो
these are the types of matrices that you need to learn, जो कि आपको means very much necessary regarding matrices point of view. Types of matrices आपके mind में होना चाहिए, which will be used in further proceedings of matrices. जब आप matrices का आगे का questions बनाना शुरू करोगे, then these types of matrices वहां पे appear होंगे. Okay, now we move to the operation of matrices. We move to our topic, operation of matrices. Operation of matrices. Operation of matrices में first one is addition. Addition of matrices कब possible है? Addition of matrices, that is more important. When addition of matrices के लिए requirements क्या होगा? Just आप समझना. First requirement, order must be same. Order of matrices should be equal. Order अगर equal हो गया, then two matrices can be added. और अगर order equal नहीं हुआ, then they can't be added. Why? We can understand through an example. हम लोग एक example से समझ सकते. Okay. Addition में क्या होता है? जैसे 2, 1, 9, 8. It is a matrix of order 2 by 2. Another matrix of order 2 by 2. Okay. 1, 7, 8, 9. Why there is possibility कि same order वाले matrix में ही addition possible है? Because when you add two matrices or when you combine two matrices, corresponding elements are added. Okay, जब आप दो matrices को add करते हो तो corresponding elements का ही addition होता है. Means what? ये element जो कि first element है, ये first वाले से combine होगा, ये element इससे कंबाइन होगा, पोजीशन वाइज एडिशन होता है ना. ये एलिमेंट इससे कंबाइन हो जाएगा और फाइनली दिस एलिमेंट विल बी कंबाइंड विद दैट एलिमेंट. सो व्हाट विल यू राइट इन द एडेड फॉर्म? ओके, एडिशन का जो फॉर्म होता है वो क्या लिखते हो आप उसमें? इक्वल टू, देखो फॉलो करना, 2 + 1, 1 + 7, 9 + 8 and then 8 + 9. This is our added form. Okay, where corresponding elements are added. And now it can be written as 2 + 1, 3, 9 + 8, 17, 7 + 1, 10 and 9 + 8 again 17. This is our combined matrix. So what we have learned is that कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए जो पॉसिबिलिटी होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर का इक्वल होना. ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स था और ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स था. दैट्स व्हाई दे कैन बी एडेड. ओके, अब पॉसिबिलिटी ऑर्डर के डिफरेंट होने पे क्या हो जाता है? जस्ट सी, अगर यही मैट्रिक्स जिसको आप लोग ऐड कर रहे थे 2 by 2 का, इसमें दो एलिमेंट्स और होता. ओके, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स और ये 2 by 3 का मैट्रिक्स. फॉलो करना क्यों एडिशन पॉसिबल नहीं है ऑर्डर डिफरेंट होने पे. ओके, देखो गौर करो आप, 2, 1, 9, 8 चार एलिमेंट्स है ना. चार एलिमेंट्स के लिए ये चार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं. ओके, बाकी के दो एलिमेंट्स अलग हो गए. और यू कैन से कि इस दो एलिमेंट के लिए यहां पे कोई दो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. दैट्स व्हाई ऑर्डर डिफरेंट होने पे एडिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. फॉलोड? ओके, नाउ ये था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते. And now we move to the next, that is the subtraction of matrices. Okay, subtraction of matrices सेकेंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो subtraction of
मैट्राइसेस। ओके, व्हाट इट इज कि जिस तरह से आप एडिशन को फॉलो कर रहे थे, ओके, सेम वे में जिस तरह से एडिशन में ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंसी था, सब्ट्रैक्शन में भी डिपेंडेंसी ऑर्डर के ऊपर ही होगा। ओके, मीन्स व्हाट, मीन्स रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 3 4 8 दिस इज अ मैट्रिक्स of order 2 into 2 or you can say 2 by 2, then जो अनदर मैट्रिक्स जिसमें से आप इसको दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे, that should also have an order of 2 by 2, उसका भी ऑर्डर कितने का होना पड़ेगा, that is 2 by 2। therefore माइनस कर दो आप यहाँ पे 1 0 ओके 3 एंड देन 5। तो रिक्वायरमेंट क्या है आप समझ में आ रहा होगा आपको कि जिस तरीके से एडिशन के लिए ऑर्डर्स का सेम होना ये नेसेसिटी था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर्स जो है that has to be same। ओके, मींस दिस शुड बी ऑफ द ऑर्डर 2 by 2, देन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। फॉलोड देन आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसको, मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट, देन 4 में से 3 और 8 में से 5 एंड यू कैन इजिली फाइंड, आप आसानी से पा सकते हो इसका वैल्यू, दैट इज 2 minus 1। फॉलो करना, ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 minus 1, 3 minus 0, 3 minus 0, okay, 4 minus 3, then 4 minus 3 and again 8 minus 5, that is 8 minus 5। इसको सॉल्व करके जब आप फाइनल वैल्यू लाओगे, that is 1 1 3 and then 3। this is our final answer। means what, the funda for addition and subtraction is same। okay, then related problems can be solved easily if you get to know the concepts। okay, now the third one, okay, now go for the third one जो कि आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसेस के रिगार्डिंग पढ़ना, इसके अंडर में पढ़ना है। वो थर्ड वन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है। ओके, तो जस्ट सी एनी नंबर का नेगेटिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल 5 का नेगेटिव आप क्या लिखते हो, -5। ओके, आप इसको कैसे लाते हो, है ना, इसको कैसे आप अटेन करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि 5 को व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय -1 we get -5। फॉलो करना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बता देगा। ओके, when any positive number is multiplied by -1 we get result as the -5। then if you have a matrix, for example A equal to 1 2 3 5 and you are asked to find the negative of A, then what should be done is that A को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आप कैसे इसका आंसर लिखोगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A, ओके, इज गिवन बाय, जस्ट सी A when multiplied by -1। फॉलो करना, A को -1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब फिर एक बात और, अगर इधर आप LHS में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, then these elements should also be multiplied with -1, means RHS maybe you will have to multiply by -1। okay, so -1 and then 1 2 3 5। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, -1 जो है ये एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। फॉलो कर लो, -1 is multiplied by each and every element and just
what will you get is that minus 1 multiplied by 1 is minus 1, minus 1 multiplied by 2 is minus 2, minus 1 multiplied by 3 is minus 3, and it is minus 5. This is the negative of a matrix. कोई भी मैट्रिक्स का नेगेटिव यही होता है. Means a simple approach, a very simple approach, when any matrix or when each and every element of a matrix is multiplied by minus 1, then negative of a matrix can be attained or can be found. कि आप negative of a matrix जो है आप इसको पा सकते हो कि किस तरीके से find out करना है. Is it clear? Okay. These are the concepts related to matrices which will be used to solve the questions, and I think further जो questions अब आपके book में मिलता जाएगा जो कि इस concept से related होगा, then you can easily solve by reading, by viewing this concept. अगर इस concept को आप grasp कर लेते हो, then further questions can be solved very easily. And lastly, be with me to view for the latest updates of the video lectures, and thanks for watching the lesson.